Holy Spirit, this morning we want you to usher us in. Take us into the holiest of holies this morning, Lord. Father, as you've invited us to go up the mountain, we want to see your glory just as Moses did. Lord, that's the desire of our heart this morning. I see the cloud. I step in. I want to see your glory like Moses did. Flashes of light, rolls of thunder, but I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory, Lord. Show me your glory. I'm awed by you. Ooh, lost in your eyes. Lost in your eyes. Oh Lord, I want to walk. I want to walk in your presence like Jesus did. Ooh, your glory surrounds me. Yes, and I'm overwhelmed. Oh, but I'm not afraid. I want to see you, Lord. I'm not afraid. Show me your glory. Show me, Lord. Show me your glory. Oh, show me your glory. Show me your glory. Just show us, Lord. Show us, Lord. Show me your glory. I want to see you face to face, Lord. Show me your glory. Oh, show me your glory. Show me your glory. Oh, I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence, to where I belong. Long to look on the face of the one that, oh Lord, I long to stay in your presence. Yeah, long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I belong. So show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Yes. Show me your glory. Ooh, yes. Come on, can you release that song that our prophet was talking about on Wednesday? That unique song that comes from your
this morning. Show us your glory. Yeah. We wanna see. Oh, 'Cause I see the clouds. I step in. I wanna see your glory like Moses did. Ooh, flashes of light, rolls of thunder, Jesus. But I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Yes. Show me your glory. Ooh, Lord, show us your glory this morning. Take us up the mountain and hide us in the cleft of the rock, that we may see you, Lord, as you pass by. Oh, your beauty and your glory surrounds us. Hallelujah, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हम बहुत ही आशीषित हैं कि हम उसके पंखों तले जी रहे हैं। उसने हमसे वादा किया है कि इस पृथ्वी के अंत तक वो हमारे साथ बना रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमारा दाहिना हाथ थामे रखा है, और वो जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है कि वो अंत तक हमारी अगुवाई करते रहेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए कि हम उसकी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि हम अलग अलग जगहों में हैं, हम टेक्नोलॉजी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। ये समय लेकर हम हमारी आराधना की टीम, हमारी मीडिया टीम और वो सारे लोग जो इन वीडियोस को आप तक लाने में काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। इस विश्वास योग्य रीति से, जिस लगन से, जिस मेहनत से, बिना शिकायत करे हफ्ते दर हफ्ते वो ये काम कर रहे हैं, हम उन सभी को सराहते हैं। अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जिस मेहनत से, जिस निपुणता से इन सारे कामों को किया है, प्रभु आपको इन बातों के लिए बहुत बहुत आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया भी इन सारे दलों का बहुत बहुत आभार मानती है जो इतनी मेहनत करके इन सभाओं को हम तक पहुंचा रही है। मैं जानता हूँ कि वचन से पहले हमारे पासबान आकर अर्पण और दशांश में आपकी अगुवाई करते रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ आपके अर्पण और दशांश के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। जिस विश्वास योग्य रीति से आपने अपने अर्पणों को, अपने दशांश को परमेश्वर के घर के प्रति भेजा है, हम उन बातों के लिए आपको सराहते हैं। आपकी उदारता के लिए आपको सराहते हैं। आप ही के अर्पणों के द्वारा हम इन सारे कामों को कर पाए हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को इन माध्यमों के द्वारा फैला सके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेवकाई जो कुछ भी कर रही है और उसका असर अनंत काल में जैसा भी है, उसमें आपका भी भाग है, सहयोग है। कि परमेश्वर
आपको आशीषित करे और आप अपने सारे धन्यवाद के हृदय से अपने दशांश को जो प्रभु के पास भेज रहे हैं, उस कारण आपके आर्थिक जीवन के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा निरंतर बनी रहे। आपको अब तक जैसा समझ नहीं आया है, उस रीति से भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके आर्थिक जीवन पर बरसता रहे। प्रभु आपको युक्तियां और योजनाएं दे और प्रभु ऐसा होने दे कि आपका बोया हुआ बीज बहुगुणित हो जाए, यीशु मसीह के महान नाम में। और आप किस माध्यम से हम तक आपके अर्पण पहुंचा सकते हैं, ये जानकारी आपके स्क्रीन पर इस वक्त उपलब्ध है। तो ये समय ले और अपने अर्पणों को प्रभु की ओर आप अर्पित कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के और सारे आनंद के साथ, जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके देने के द्वारा एक अनुग्रह है जो परमेश्वर आपके जीवन पर मुक्त कर रहे हैं, और परमेश्वर आपकी मदद कर रहे हैं कि आप ऐसे स्तरों में प्रवेश कर सके जो आप अपने बल के अनुसार नहीं कर सकते थे। प्रभु का अनुग्रह इन बातों पर आपके जीवन में मुक्त हो, यीशु मसीह के नाम में। आराधना की टीम जो बहुत ही बहुमूल्य है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हर बार की तरह आज भी आपने हमारी अगुवाई परमेश्वर की उपस्थिति में की है। आपके साथ आराधना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमारी टीम को दिया है, उस बात के लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट्स के जरिए ये देख पा रहे हैं कि लोग भी उस अनुग्रह में जिसमें आप उनकी अगुवाई करते हैं, आराधना करके कितने आशीषित हैं। तो आप ये बेहतर काम जारी रखें और प्रभु आपकी आराधना की अगुवाई को भी एक ऊंचे स्तर पर ले जाए। हाँ, कलीसियाएं फिर से खुल रही हैं। मैं विश्वास करता हूं 22 तारीख इस महीने की हमें दी गई है, लेकिन उसी के साथ कलीसिया में की जाने वाली कई गतिविधियों पर रोक भी लगाई गई है। उदाहरण के तौर पर हमें सिर्फ 50 लोगों को कलीसिया में आने की अनुमति दी गई है। हमारे वॉलंटियर्स और आराधना की टीम मिलकर ये संख्या पूरी हो जाती है। कलीसिया में गीत गाने पर भी रोक लगाई गई है, और इस रीति की जो रुकावटें हैं वो हमें पूरे रीति से सभी लोगों के साथ आराधना करने में बाधाएं पैदा कर रही हैं। हम चाहेंगे कि आप बुधवार के रोज हमारे साथ फिर जुड़े, ताकि हम आपको बता सके कि किस रीति से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से जो हम सेवकाई कर रहे हैं, हम उन्हें जारी रखेंगे, ताकि उसके द्वारा प्रभु की कलीसिया, प्रभु की मंडली जो सारे संसार में है, हम उनके साथ भी जुड़े रह सके। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन 50 लोगों को आने की अनुमति दी गई है, वो भी लोग बदलते रहे। शायद पंजीकरण के अनुसार हम एक हफ्ते कुछ लोगों को, उसके बाद वाले हफ्ते और 50 लोगों को हम लेके किसी तरह हम इन सभाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो इस आने वाले बुधवार की सभा को आप न खोएं, ताकि हम आपको ठीक निर्देश दे सके कि हम किस रीति से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले बुधवार को परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हुए जो 2 घंटे हमने साथ बिताए, मुझे वो करके बहुत आनंद मिला, और जैसे मैंने आपसे कहा था, उसी विषय में हम इस आने वाले बुधवार को भी आगे सीखते रहेंगे। और आपको ये देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि उसी परमेश्वर के वचन के भाग में कितनी सारी जानकारी छिपी हुई है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जानकारी अलग अलग स्तरों पर आपको और आशीषित करेगी, आपको समर्थ बनाएगी। तो ये बातें आपके साथ बांटने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि प्रार्थना पूर्वक आप इन सभाओं में शामिल हो, क्योंकि इन सभाओं का जो असरदार होना है, ये इस बात पर तय है कि आप कितने प्रार्थना के साथ, कितनी भूख लेकर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो वो सारी वीडियोस इसी YouTube चैनल पर अब भी उपलब्ध हैं, और आप उन्हें देख सकते हैं। अगर मैं सही हूं तो पिछले हफ्ते की जो सभा थी, वो आत्मिक युद्ध का जो शिक्षण है उसका 7वां हिस्सा थी। याद रखें,
इन वीडियोस को आप जरूर देखें, सीखें, ताकि हम एक एक मुद्दे को जोड़कर देख सके और अपनी समझ में हम ऊंचा उठ सके। आज की सुबह हम उसी विषय में आगे बढ़ना चाहेंगे जिस विषय में हम पिछले कुछ हफ्तों से सीखते आ रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम ऐसे विषयों पर बातें कर सके हैं जो साधारणतः चर्चा में नहीं होते। जिस विषय पर हम आज और पिछले हफ्ते बातें कर रहे हैं, वो विषय मैंने आपसे कहा भी था कि थोड़ा कठिन है, जिसका शीर्षक है प्रभु की उपस्थिति का जाहिर होना। और क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है, इस विषय में सीखने के लिए इतना कुछ है, तो ये मेरे ओर से सही नहीं होगा कि मैं जल्दबाजी में आपको ये बातें सिखाऊं। मेरी पूरी कोशिश ये है कि ये पूरा का पूरा वचन मैं उसकी सारी बारीकियों के साथ और सारे स्तरों के अनुसार आपको सिखा सकूं। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि इस विषय पर मैं जितना भी आपके साथ बांटूं वो कम ही होगा। मैं इस बात को भी जानता हूं कि ये विषय सभी के दिलचस्पी का नहीं है। कई लोग इस विषय को लेकर उत्साहित भी नहीं हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि ये जो विषय है उसके कुछ स्तरों की जानकारी ऐसे कुछ लोगों के लिए उपलब्ध हो जिनके अंदर इसे सीखने की भूख है। और हो सकता है कि इस जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा, शायद पूरा संदेश नहीं, एक वाक्य उनके अंदर एक ऐसी भूख निर्माण करे जिसके कारण वो एक ऐसी यात्रा पर निकले, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें उस पर्वत की चोटी तक ले जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपकी दिलचस्पी इसमें बनी हो। मैं आशा करता हूं कि आप उन कुछ लोगों में से हो जो इसे सीखना चाहें और आप उन 12 में से वो 3 चेले बने जो उस पर्वत की चोटी तक गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयार बैठे हैं, आप अपने बाइबल, अपनी नोटबुक के साथ इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। हम फिर से प्रभु के जाहिर होने के विषय में सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के विषय में सीखने जा रहे हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी का हिस्सा है जिसको लेकर यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी की थी कि इस पीढ़ी में विश्वास की कमी हो जाएगी। हम एक ऐसे समय में हैं जहां अराजकता बढ़ती जा रही है। हम एक ऐसे मौसम में जी रहे हैं जहां कई लोग संसार को ज्यादा पसंद करेंगे। परमेश्वर के लोगों, हम सही मायने में ऐसे समय में हैं जिसको अर्धरात्रि का समय कहा जाता है। इस समय में दुश्मन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो परमेश्वर के लोगों को गुनगुना सा कर दे। इसीलिए जो बातें मैं आपसे आज बांट रहा हूं, याद रखें, ये परमेश्वर के हृदय की करीब बातें हैं। ये बातें परमेश्वर की इच्छा है हमारे प्रति। इस विषय को लेकर और बुधवार के रोज जिस विषय पर हम बातें सीख रहे हैं, आने वाले बुधवार को मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों ही विषयों को हम साथ मिलकर देख सके, मगर वो बुधवार के दिन होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुने। ये जो मध्य रात्रि का समय है, उसमें दुल्हन एक ऐसे स्थान पर आ जाती है जहां जब तक उसे उसका दूल्हा कौन है, कैसा है, इन बातों को लेकर एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, तब तक ये खतरा बना रहता है कि वो दुल्हन घर जाए, तितर बितर हो जाए। अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता केवल कुछ ज्ञान की बातों से और कुछ वचनों के द्वारा जिसे हमने याद कर लिया है, उन बातों पर आधारित है, तो जब दुश्मन एक महान और सामर्थी लहर के समान आता है, तब हमारा टूट जाना या हमारा निराश हो जाना जाहिर बात है। लेकिन जो बातें हमें सिखाई गई हैं,
अगर वो केवल ज्ञान के स्तर पे नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत अनुभव बन गई हैं, तो परमेश्वर के लोगों, भले ही सारा नर्क हमारे खिलाफ क्यों ना खड़े हो, हम स्थिर बने रहेंगे। हम एक ऐसे विश्वासी बने रहेंगे जिसकी जड़ें मजबूत हैं। इसीलिए प्यारो, जिस विषय पर आज हम बातें सीख रहे हैं, ये किसी और समय से ज्यादा, हम जिन समयों में आज जी रहे हैं, ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह एक मूर्ख भेड़ में दिलचस्पी नहीं रखते। वो एक ऐसी दुल्हन की अपेक्षा करते हैं जो बुद्धिमान है और जिसने उसके आने के लिए अपने आप को तैयार किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक विश्वासी ने प्रभु के लिए आग अपने दिल में बनाए रखनी है। हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के लिए लगन होनी है और स्वर्गीय चीजों का उसने पीछा करना है। परमेश्वर की महिमा का हमने पीछा करना है। परमेश्वर के लोगों, ये विषय मेरे हृदय पर इतना भारी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम जिन किन्हीं चीजों का पीछा करते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी उसकी महिमा का पीछा करना है। ये विषय इतना कठिन है कि कई बार लोग इसे ऐसे माध्यम पर, ऐसे मंच पर इसके विषय में चर्चा करने में भी कतराते हैं। लोग इस विषय को उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जिनमें बहुत ज्यादा लगन और भूख हो। लेकिन प्यारो, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम इस विषय पर सीखते रहें। इस कारण कि शायद हमारे इस विषय को सीखने के द्वारा कुछ और लोग परमेश्वर का पीछा इस स्तर पर कर सके। बुधवार के रोज भजन संहिता 105 से मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह परमेश्वर को हम 3 स्तरों में खोज सकते हैं। पहला स्तर ये कि हमें प्रभु को खोजना है, जिसके विषय में मैंने आपसे कहा था कि हमें प्रभु से मांगना है। दूसरा हमने सीखा था कि प्रभु के बल के खोजी बनना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें याद है प्यारो। और तीसरा जो स्तर था जहां पर हमारे लिए एक व्यक्तिगत न्योता है, हमें जो दिया गया है, और वो उसके मुख के खोजी होने के लिए है। तो हम केवल प्रभु से उसकी इच्छा जानने में पीछा ना करें, केवल उसके बल को पाने के लिए उसका पीछा ना करें। उसका बल यानी कि हमारी समस्याओं का समाधान, इस बात के लिए उसका पीछा ना करें। वो कहता है इससे थोड़ा आगे बढ़कर उसके चेहरे के, उसके मुख के हम खोजी बन जाएं। वो जो है, वो जो महिमा का राजा है, वो हमारे प्राणों के लिए जो है, उन बातों के लिए हम उसका पीछा करें। परमेश्वर के लोगों, वो हमारे प्राणों का प्रेमी है। प्यारो, हम देखते हैं कि मूसा पुकारता है और कहता है, प्रभु मुझे अपनी महिमा आप दिखाएं, मुझे आप अपना चेहरा दिखाएं। सवाल यह है कि प्रभु यीशु हमारे लिए किन बातों की इच्छा करते हैं। हमारे लिए ये जानना जरूरी होना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे लिए किन बातों की इच्छा करता है। कृपा करके मेरे साथ पवित्र शास्त्र खोले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। ये बहुत ही जरूरी अध्याय है। मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं कि इस हफ्ते कुछ समय निकालकर इस अध्याय को आप पढ़ें और उस पर मनन करें। अगर आप ऐसा करेंगे
तो आप बहुत ही सुंदर और बहुमूल्य बातों को इस वचन में सीख पाएंगे। आप यीशु मसीह के हृदय को जान पाएंगे। ये अध्याय जो है एक प्रार्थना है जो यीशु मसीह कर रहे हैं, और ये प्रार्थना हर एक के लिए नहीं है। ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो ये प्रार्थना एक छोटे से समूह के लिए कर रहे हैं। 9वें वचन में प्रभु ये कहते हैं कि मैं पूरे संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें आपने मुझे दिया है, क्योंकि वो आपके हैं। यानी कि वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो उन्हें दिए गए हैं, और ये बातें उनसे जुड़ी हुई हैं जो बातें हम पिछले कुछ हफ्तों से सीख रहे हैं। वो अपने काम को लेकर यहाँ वहाँ बिखरे नहीं है, लेकिन उनका जो ध्यान है पूरी तरह केंद्रित उन बातों पर जो उसे सौंपी गई है। मेरी जिम्मेदारी हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ उन पर जो मुझे दिए गए हैं। और इससे आगे भी कई बातें यीशु मसीह कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि जब मैं उनके साथ था तो प्रभु आपके नाम में मैंने उन्हें संभाले रखा। और वो आगे ये भी बताते हैं कि किस तरह उसने उन सभी को संभाला जो उन्हें सौंपे गए थे। आगे वो ये भी कहते हैं कि मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि देखो, वो एक व्यक्ति जो है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं वो जो है विनाश का जो मार्ग है उसे चुन लिया है। लेकिन बाकियों के लिए मैंने प्रार्थना की है और आपके नाम में मैंने उन्हें संभाले रखा है। और उसके बाद उन लोगों के विषय में वो अपने हृदय को बांटना शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप 20वें वचन से मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। अगर हमें कभी मौका मिला तो मैं हर एक वाक्य को इस अध्याय के पढ़कर उसमें से आपसे बातें करना चाहूंगा। लेकिन हमारे आज के विषय को याद रखते हुए हम सिर्फ 20वां वचन पढ़ेंगे। 20वां वचन यूं कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि सुनो, मैं केवल मेरे जो 11 चेले हैं उनके विषय में प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सभी के लिए जो कल इनकी आवाज सुनेंगे और इनकी आवाज सुनकर मेरे पास आएंगे। वाह परमेश्वर! यीशु मसीह उन शब्दों का आदर कर रहे हैं जो शब्द वो इन 11 चेलों के जबान पर रखने जा रहे हैं, और उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इन 11 के शब्दों को सुनकर उसके पास आने वाले हैं। कुछ लोग शायद आपसे कहें भी कि तुम तो यीशु नहीं हो, हम तुम्हारी क्यों सुने। तो यीशु मसीह के ये जो शब्द हैं ये उनके लिए मानो जवाब से हैं, और उन लोगों के लिए जो इन चेलों की आवाज को या उनकी आवाज को सुनते हैं जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए भेजा है। और 21वें वचन में वो कहते हैं कि वे सब एक हो। परमेश्वर के लोगों, ये बातें अब उनके विषय में हो रही है, 11 चेलों के विषय में, और उन सभी के लिए जो इन 11 की आवाज सुनकर परमेश्वर के पास आने जा रहे हैं। और इन लोगों में, प्रभु के लोगों, आपकी और मेरी गिनती भी है। वो कहते हैं कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ठीक है, 22वां वचन हम पढ़ते हैं। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि मैं महिमा उन्हें देने जा रहा हूं, मगर ऐसा लिखा है कि जो महिमा आपने मुझे दी वही महिमा मैंने उन्हें दी है, ताकि वो एक हो जैसे आप और मैं एक हैं। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैंने उन्हें महिमा पहले ही दे रखी है। वचन कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन्होंने हमें वो महिमा पहले ही दे रखी है। इसके बावजूद हम कई बार उस महिमा की सतह को भी नहीं छू पाते। जिस रीति से हमें उस अनुग्रह में चलना चाहिए, हम उस रीति से उसमें चल नहीं पाते। इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये संदेश इतना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया जो है हर हफ्ते
बहुत ही धार्मिक रीति से जो कार्य करती है, करती रह सकती है। वो सारी आदतें जो हमने अपने अंदर तैयार की हैं, हम जो है इतवार की सभा कर लेंगे, हम बुधवार की सभा कर लेंगे, हम अर्पण देंगे, हम दशांश भी दे देंगे और वो सारे काम कर लेंगे जो एक मसीही व्यक्ति से जिनकी अपेक्षा की जाती है। कई बातें हैं जो परमेश्वर के एक संतान को रोक सकती है। ये वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके लहू के द्वारा धोए भी गए हैं, इनका उद्धार भी हुआ है। लेकिन जब तक वो इस पृथ्वी पर है, वो उस परिपूर्णता में नहीं चल पाते जिसमें परमेश्वर की मर्जी है कि वो चले। इन बातों से आपकी चिंता बढ़नी चाहिए। इसीलिए जब मैंने ये बातें आपसे कही, तो आपने ये सवाल करना है कि क्या ये विषय ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि हम इन्हीं विषयों में आगे बढ़ें और आगे सीखते जाएँ? इन विचारों के बावजूद मैं इस विषय में आगे बढ़ना चाहता हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह से आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, जो मैं विश्वास करता हूँ एक बीज का काम करेंगी और उसके द्वारा एक महान सफर का शुरुआत होगा। मैं अपने आप को ये देखते हुए पाता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो सभी पासबानों के लिए नहीं आया। इन सातों कलीसियाओं के स्वर्गदूत जो उनके अगुए, उनके लिए ये वचन नहीं आया, लेकिन ये वचन आया उस एक व्यक्ति के लिए जो चुना गया था, जो अलग किया गया था, अलग पाया गया था। अपने आप को हर एक ध्यान भटकाने वाली चीज से उसने अलग कर रखा था। उन 3 लोगों के लिए जो यीशु मसीह के उस महान न्योता के लिए तैयार थे कि वो यीशु के साथ उस बड़े ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाए और देख सके उन बातों को जो दूसरे चेलों ने नहीं देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो न्योता है जो आपके पास आ रहा है आज की सुबह, उसके भार को, उसके वजन को आप समझ सकें। बात ये है कि जब हम इन थोड़े लोगों को देखते हैं जिन्हें ये अनुभव मिले, तो हमारे लिए ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि परमेश्वर की महिमा सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित होती है या इन्हीं लोगों के लिए है। इसके बावजूद कि थोड़ी ही संख्या है उन लोगों की जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा या उसको समझा। याद रखो वो वचन जो हमने सुना कि यीशु ने ये कहा कि मैंने अपनी महिमा उनको पहले ही दे दी है। हम परमेश्वर के वचन को यशायाह के 6 अध्याय उसके 3 वचन की ओर ले जाएं। यशायाह 6 अध्याय उसका 3 वचन। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से, महिमा से भरपूर है। ये उन सरापों की गवाही है जिन्होंने अपने 2 पंखों से अपने चेहरे को ढांप लिया था, 2 पंखों से अपने पांवों को ढांप लिया था और वो 2 पंखों से प्रभु जो महिमा का राजा है उसके सामने उड़ते थे। और ये वचन उनकी गवाही है, उनकी गवाही है उस महिमा के स्थान से, उस स्वर्गीय स्थान से, उस महिमा के सोत्र की ओर से उनकी ये गवाही आ रही है। वो क्यों अपना चेहरा छुपाए खड़े हैं? वो महिमा के राजा के सामने खड़े हैं और जब वो वहां खड़े हैं तो उनकी पहचान मायने नहीं रखती। उनकी पहचान केवल इसमें है कि वो उस महिमा के राजा का प्रतिबिंब बन सके। उन्होंने अपने पांवों को भी ढांप लिया है। आपके पांव जो है, आपके पैर दर्शाते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं। आपके पांव आपके बीते हुए कल को दर्शाते हैं। वो दर्शाते हैं उन स्थानों को, उन जगहों को जहां कभी आप गए थे। पवित्रता और शुद्धता को दर्शाते हुए वे अपने आप को ढांप लेते हैं और उनके आखिरी 2 पंखों से वे उड़ते हैं ताकि महिमा के उस राजा के सामने वो खड़े रह सके। तो आप
एक बहुत ही दिलचस्प बात को देख रहे हो यहाँ पर। उनके चेहरे छिपे हुए हैं, उनके पांव छिपे हुए हैं, यानी कि उनका बीता हुआ कल भी छुपा हुआ है। तो कोई एक ऐसी शुद्धता के स्थान तक कैसे पहुंच सकता है? पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि मसीह यीशु में एक ऐसा स्थान है जहां हम उस चट्टान के बीच छिप सकते हैं, उस स्थान से जहां से मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा था। और यहाँ हम इन सरापों को देखते हैं, वो भी वही कर रहे हैं, अपने आप को छिपा रहे हैं। आप और हम भी ऐसा ही कर सकते हैं और करते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब पिता हमको देखते हैं तो वो हमें नहीं देखते परमेश्वर के लोगों, वो अपने बेटे के लहू को देखते हैं, उस मेमने के लहू को जो हमें पवित्र बनाता है। वो भाइयों के ऊपर दोष कसने वाला, निंदा लाने वाला दुश्मन है जो हम पर दोष कसता है, लेकिन जब पिता हमको देखते हैं तो वो परमेश्वर यीशु मसीह की दया, उसकी करुणा और उसके अनुग्रह में हमें देखते हैं। वो अपने बेटे यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर देखते हैं। सिर्फ यही बात अकेली काफी है कि हम परमेश्वर की महिमा को जान सके, चख सकें। लेकिन इनके बावजूद भी हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समझ नहीं है कि ये बातें किस तरह होती हैं। ये हमारे समझ की कमी के कारण है। उस महिमा को लेकर, परमेश्वर की महिमा जो हमारे चारों ओर निरंतर है, यही बात हमें रोकती है ताकि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के परिपूर्णता में चल सके जो परमेश्वर के किसी भी संतान के लिए इस पृथ्वी पर उपलब्ध की गई है। अब ये सरापे जो उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं, उनकी एक गवाही है, और वो ये गवाही कुछ ऐसी है। वो कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वाह! वो कहते हैं सारी पृथ्वी उसके तेज से, उसकी महिमा से भरी हुई है, भरी हुई है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ग उसकी महिमा से भरा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है। अगर ये स्वर्गदूत जो कह रहे हैं वो सही है, तो ऐसा क्यों है कि केवल यशायाह इन बातों को देख पा रहा है? ऐसा क्यों है कि केवल एक यहेजकेल है जो इन बातों को देख पाता है? ऐसा क्या है, क्यों है कि यहेजकेल जब अगुओं के साथ बैठा है तो उनमें से कोई और नहीं, केवल वही अकेला इन बातों को अनुभव कर पाता है? अगर पृथ्वी सही मायने में उसकी महिमा से भरी हुई है, तो क्यों केवल दानिएल उस महिमा को देख पाता है और उसके मित्र उसे नहीं देख पाते? अगर सच में उसकी महिमा पृथ्वी पर भरी हुई है, तो क्यों उन 7 कलीसियाओं के जो स्वर्गदूत हैं, अगुए हैं, वो उस महिमा को नहीं देख पाते, जिसे देखने का सौभाग्य केवल यूहन्ना को मिला? अगर आप जल्दबाजी में ये कहें कि वो इस कारण देख पाए क्योंकि उनकी बुलाहट ही यही थी, तो आप शायद थोड़ा ध्यान देकर पढ़ें तो आप पतरस को देखेंगे। पतरस ने तो 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। वो यूहन्ना जैसा नहीं था जो यीशु मसीह का प्रिय था। अगर किसी का व्यक्तिगत आत्मिक जीवन हिला हुआ था तो वो पतरस का था। एक क्षण वो विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, लहरों पर चल रहा था, दूसरे ही क्षण वो उसी पानी में डूब रहा था। एक दिन वो कहता है, यीशु मसीह आपके लिए हम मरने को भी तैयार हैं। दूसरे ही दिन वो एक छोटी सी लड़की के सामने उसी यीशु का इनकार कर देता है। वो एक ऐसा विश्वासी था जो स्थिर नहीं था। इन बातों के बावजूद पतरस उन 3 लोगों में एक था जो यीशु मसीह के स्वरूप को बदलता हुआ देख सके, जो उसकी ज्योति को, महिमा को देख सके और उसकी बिजली सी कड़कड़ाहटी आवाज को सुन सके।
सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं, उसने मूसा को और एलिया को भी देखा जो उस पर्वत के ऊपर उतर आए थे। तो जिस कारण वो इस महिमा को देख पाए, वो योग्यता उनकी पवित्रता में नहीं थी, केवल उनकी पवित्रता से कुछ और था जिसने उस बात के लिए उनको योग्य बनाया था। इसीलिए ये न्योता जो हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय आ रहा है, उसे हमें जल्दबाजी में ठुकराना नहीं है। आपने ये कहकर इस बात को टाल नहीं देना है कि उसकी महिमा को केवल कुछ विशेष लोग ही देख सकते हैं। याद रखें कि हमारा परमेश्वर इस बात में सबसे उत्तम है कि वे लोग जो कुछ नहीं उन्हें बड़े मौके दे सके। मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये जानते हुए कि सुलेमान आगे चलकर उसकी राह से भटक जाएगा, ये जानते हुए, उसके भविष्य को जानने के बावजूद परमेश्वर ने उसे ये मौका दिया था कि वो इन बातों का अनुभव कर सके, केवल इस बात को देखते हुए कि आज के इस दिन में उनका भक्ति परमेश्वर के प्रति कैसा है। पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है। कोई आज कहे परमेश्वर से, प्रभु मैं सीखना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर रहने के बावजूद, इस पृथ्वी पर इन दिनों में मैं कैसे आपकी महिमा को देख सकूं, समझ सकूं, चख सकूं। आओ प्यारो, अपनी आवाजों को उठाओ, अपनी आवाजों को उठाओ, अपनी आवाजों को उठाकर उससे पूछो। आप अपने अपने घरों में बैठे हैं प्यारो, इसलिए अपनी आवाजों को बुलंद करके उसके सामने पुकारने में आप शर्मिंदा ना हो। कोई कहे उससे कि प्रभु इस पृथ्वी पर अब जब मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ पर आपकी महिमा का अनुभव करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं? इस वचन का आपके पास आना इस बात का सबूत है कि वो आपसे प्रेम करता है। और आज प्रभु अपनी दुल्हन को एक न्योता दे रहे हैं। वो न्योता दे रहे हैं हमें कि हम उसके साथ एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ें। हम में से कितने लोग इस न्योते को स्वीकारेंगे? क्या आप वो व्यक्ति हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं? हाँ, उससे बातें करें परमेश्वर के लोगों, उससे बातें करें। कृपया मेरे साथ हबाकुक की पुस्तक को खोलें। मैं आपको उसमें से कुछ दिखाना चाहता हूं। हबाकुक की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 14 वचन। 2 अध्याय 14 वचन। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। इस वचन में हम उस प्रवेश द्वार को देखते हैं, उस महिमा के स्तर में कदम रखने के लिए। क्योंकि वचन ये कहता है कि पृथ्वी उसके महिमा के ज्ञान से भरी हुई होगी। तो केवल यहां परमेश्वर की महिमा की बात नहीं हो रही है, परमेश्वर के महिमा के ज्ञान की बात हो रही है। और बहुत थोड़े लोग होंगे जो परमेश्वर की महिमा का ज्ञान रखेंगे, पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, क्या आपको याद है कि सॉल के साथ क्या हुआ था? किस तरह एक महान रोशनी उसके ऊपर चमकी थी और वो गिर पड़ा था। उसके आसपास के जो लोग थे उस रोशनी को देखकर भयभीत हो गए थे, लेकिन सॉल उन बातों को सुन सका।
जो किसी और ने नहीं सुनी थी। तुरंत उसी समय सॉल, जो उस रोशनी के अंदर मानो पकड़ा गया था, उसके लिए एक द्वार खुल गया था कि वो उस महिमा में, उस रोशनी में एक अलग ही स्तर पर एक आवाज को सुन पाता। उसे उस रोशनी के द्वारा एक ऊंचे स्तर पर खींच लिया गया था, जहां सब केवल रोशनी को देख रहे थे। वो उस रोशनी के द्वारा, उस रोशनी के अंदर बातें करने लगा था। मेरे प्रभु, जैसे मैं ये बातें कर रहा हूं, यही सारी चीजें आपके घरों में होना शुरू हो जाए, यीशु के महान नाम में। आपके घरों में रोशनी हो, यीशु मसीह की रोशनी आपके आत्माओं में एक बाढ़ के समान आ जाए। हाँ, ये हो रहा है। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहां पर है प्यारो। दूसरे नहीं समझ सके कि उस समय क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें वो न्योता दिया नहीं गया था। उन्हें वो न्योता नहीं दिया गया था। उन्हें वो न्योता नहीं दिया गया था कि वो जाने इन बातों को। उन्हें ये दिया नहीं गया था कि वो समझ सके इन बातों को। यही तो बातें हैं जब यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने महिमा उन्हें दी है, लेकिन फिर भी हम बिना किसी सामर्थ्य के जीते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया का जो महानता है, उसको हम बिना समझे जीते हैं। हमारे पास दर्शनों को लेकर समझ नहीं है, हमें पता नहीं है कि उसके वरदान किस रीति से काम करते हैं। हम एक बहुत ही कमजोर समूह हो गए हैं विश्वासियों का। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपके साथ बदल रही हैं। हाँ, विश्वास से इन बातों को आप इस समय प्राप्त कीजिए। ये बातें आपके परिवार के साथ बदल रही हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे बच्चे इस महिमा के समझ में काम करेंगे, बढ़ेंगे। उसकी महिमा का ज्ञान। हाँ प्यारो, कई बार मैंने ध्यान दिया है कि किस तरह हम परमेश्वर की चीजों को साधारण बना देते हैं। देखिए, परमेश्वर की चीजों को समझने के लिए उनको साधारण रीति से जानना और साधारण रीति से समझाना जरूरी है, और वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि साधारण रीति से हम उसकी महिमा को जान सके। लेकिन एक खतरा भी है जब हम परमेश्वर की बातों को, उसकी महिमा को बहुत ही ज्यादा साधारण बना देते हैं। बहुत जरूरी है कि हम समझें कि किस तरह परमेश्वर के नबूवत का शब्द काम करता है, किस तरह नबूवत का वरदान काम करता है। सिर्फ इसलिए कि ये वरदान हमारे लिए उपलब्ध है, हम कभी कभी उसे बहुत साधारण रीति से ले लेते हैं, और ऐसा करने के द्वारा हम एक नबी का जो ओहदा है और उसके वरदान को समान बना देते हैं। और कभी ऐसा होता है कि वो जिसके पास केवल भविष्यवाणी का वरदान है, वो उस नबूवत के ओहदे के ऊपर भी अब कार्य करना शुरू करता है। और ऐसा करने के कारण आप देखते हो हर प्रकार की उलझने, हर प्रकार का हर प्रकार का अहंकार लोगों के जीवन में नजर आना शुरू हो जाता है। और दुश्मन इन्हीं बातों का फायदा उठाकर परमेश्वर जो कर रहा है उसे पूरी तरह दूषित कर देता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की, समझ की कमी है। इसीलिए आज जब मैं ये बातें आपके साथ बांट भी रहा हूं, मैं इस बात को लेकर सावधान हूं कि मैं चीजों को आपके लिए ज्यादा ही साधारण बना न दूं, वो भी एक ऐसे मंच के ऊपर जहां ये इतने लोगों तक पहुंच रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे समझेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक यात्रा की शुरुआत है, ये एक न्योता है। मैं आशा करता हूं कि किसी चीज का आज जन्म हो रहा है आपकी आत्माओं के अंदर। ये मेरी इच्छा है कि आज का ये वचन आपके अंदर एक नई इच्छा को
जन्म करे, एक नई इच्छा पैदा करे, एक ऐसी इच्छा जो मूसा में थी, जो कहता है कि प्रभु मैं और चाहता हूं, और आपकी बातों में बढ़ना चाहता हूं, और जानना चाहता हूं। मैं केवल नाम का मसीही नहीं बनना चाहता, लेकिन परमेश्वर की बातों को इस पृथ्वी पर अनुभव करना चाहता हूं, उनमें चलना चाहता हूं। ऐसी इच्छाएं रखने वाली कलीसियाएं बहुत कम हैं, और मेरी प्रार्थना है कि आप वैसी कलीसिया बने। आपके अंदर वो इच्छा निर्माण हो जो ये कहे कि प्रभु मुझे आपकी महिमा का ज्ञान पाना है, मैं आपके महिमा के ज्ञान को समझना चाहता हूं। वो जो आपने मुझे पहले ही दे दिया है, प्रभु मैं कैसे उस स्तर पर जाऊं, मैं कैसे उस स्तर को बचा कर रख सकूं, मैं कैसे इस संसार में होने के बावजूद परमेश्वर से जुड़ा हुआ हो सकता हूं, और इस संसार में होने के बावजूद कैसे मैं इस संसार के लिए आशीष का कारण बनकर रह सकता हूं, कैसे मैं इस पृथ्वी पर इनोक के समान हो सकता हूं, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के साथ चला, उसकी संतानें हुई। हाँ, इस दुनिया में रहकर भी हम परमेश्वर के साथ चलकर भी बाकी सारे काम कर सकते हैं जो करना जरूरी है। आप परमेश्वर की महिमा में चलते हुए भी इस पृथ्वी पर आशीष बन सकते हैं। कुछ लोगों की समझ उसकी महिमा में चलने का यह है कि वो अपने आप को इस दुनिया की हर चीज से अलग कर देते हैं। याद रखें, आपको इतना आत्मिक नहीं होना कि आप इस पृथ्वी पर किसी काम के लायक न रहें। आप एक ऐसी जगह पर पहुंचना जरूरी है जहां आप इन दोनों ही बातों के बीच संतुलन बना सके। कैसे मैं परमेश्वर की इस उपस्थिति को संभाल सकूं? आप में से कुछ लोग ये वीडियो को जिस समय देख रहे हैं, आप महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर का सामर्थ्य इस स्क्रीन के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। आप में से कुछ लोग अभी इसी समय अपने शरीरों पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। क्या आपने कभी इस बात का जो है ध्यान दिया है कि इस वीडियो के खत्म हो जाने के कुछ ही देर बाद या कुछ घंटों बाद या किसी के लिए अगले ही दिन आप ये पाते हैं कि आप फिर से उस साधारण जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? आपको खोजना है, सवाल करना है कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। जांचना है कि कब मैं उस स्तर से बाहर निकल आया जहां परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा मेरे घर को भर रही थी। कैसे हम उन बातों से अलग हो गए? ये कैसे हो सकता है कि मैं इस दुनिया के अंदर काम करता रहूं, लेकिन उस ऊंची दुनिया, उस ऊंचे स्तर से जुड़ा रह सकूं? मैं आशा करता हूं कि आज परमेश्वर आपके अंदर इस इच्छा को जगा रहे हैं कि आप उसकी महिमा का पीछा कर सके। ये आपके लिए उपलब्ध है प्यारे परमेश्वर के लोगों। हाँ, उसे खोजें। जब आप उसे पा सकते हैं तब उसे खोजें। ये आपका समय है। अगले हफ्ते मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह परमेश्वर की मेहरबानी ये होने देती है कि उसकी करीबी हमारे जीवन में बढ़ जाए, और सीखेंगे हम कि किस तरह हम उसकी करीबी का हिस्सा बन सकते हैं और उसकी उपस्थिति को जाहिर होता हुआ देख सकते हैं, किस तरह हम उस बेदारी का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते क्या आप उसका पीछा करेंगे? इस हफ्ते क्या आप अपना सारा ध्यान उसे देंगे? इस हफ्ते क्या आप उसे पुकारेंगे? इस हफ्ते जैसे आपने पहले कभी नहीं किया, क्या आप उसके मुख को खोजेंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे? इस हफ्ते क्या आप पहले जैसे कभी नहीं किया था वैसे अपने आप के लिए मर जाएंगे? इस हफ्ते क्या आप शरीर की लालसाओं को, चीजों को इनकार कर सकेंगे? क्या आप अपने पति और अपने पत्नी से शांति स्थापित कर पाएंगे जैसे पहले कभी नहीं किया था? क्या आप अपने आप को थोड़ा और नम्र कर पाएंगे जैसे पहले नहीं किया था इस हफ्ते? हाँ, अपने आप को तैयार करें।
प्रभु आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और ये एक न्योता है आपके लिए। हम दोबारा मिलने तक प्रभु के महान हाथ के नीचे आप बने रहें। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।